Hello student, this is KK Bhatt here. Dear students, today I am here with the chapter or triumph of surgery. That is from class 10th English. This is your last paragraph. Today I have completed the lesson. In the previous video I have tell you how to Tricky went to the hospital of Dr. Harriet and what is the role of Mrs. Pumphrey. Now see here, as you know that Mrs. Pumphrey just started to send eggs, then after some time she started to send brandy. That is because of she wants to develop the body of Tricky. So because you know well that Dr. Harriet just kept Tricky on diet. That is why he can't able to provide him such type of food which is become fatty for her. In this sequence today I am going to explain that we could hardly believe it. मतलब यहाँ डॉक्टर हैरिस जस्ट सेइंग दैट he can't easily believe when the brandy came to put a final age on Tricky constitution. When brandy sent by Mrs. Pumphrey because she wanted to make body structure strong of Tricky. So as soon as when she realized that brandy has been sent by Mrs. Pumphrey for Tricky, that time he thought about a happy moments. For a few nights, the fine spirit was rolled around. Here the writer said that he spent few nights very happily. Because of the egg and the brandy. He inhaled the brandy and then after respectively drink the brandy. In this way, Dr. Harriet just enjoying the golden moment of his life with his partner Transit. So, do you understand? So, we could hardly believe it when the brandy came to the put a finalist on Tricky's constitutions. For a few nights, the fine spirit was rolled around in hell and revenantly. तो आपने समझा कि जब ब्रांडी आती है तो उन्हें विश्वास नहीं होता है डॉक्टर हैरिट को कि रियली ये ब्रांडी आई है कैट के लिए. फिर भी वो बड़ा खुश होते हैं क्योंकि कैट को तो ब्रांडी देने वाले हैं नहीं. वो क्या करते हैं, कुछ समय तक जब तक ब्रांडी रहती है उस अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, उसको सूंघते हैं, उसको रिस्पेक्टफुली तरीके से एक सानर के साथ उसको ड्रिंक करते हैं. नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ. देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, improve and sustained by the midway wine and finishing luxurious round the fire with the brandy. Here the writer said that they were days of deep content. मतलब वो जो दिन थे बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत ही संतोषप्रद थे. because they enjoying a lot of they took enjoy with egg and brandy. तो वही कह रहे हैं starting with the with the extra egg in the morning, यानी सुबह वो ब्रेकफास्ट में एग लेते थे और इस तरह से एग के साथ वो जो है अपनी मॉर्निंग को स्टार्ट करते थे. इम्प्रूव्ड फिर आगे बढ़ते थे एंड सस्टेन बाय द मिडवे वाइन, और दोपहर के समय वो क्या करते थे मतलब ब्रांडी लेते थे एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड, और रात के समय अपनी इस जर्नी को वो समाप्त करते थे
टू सिट बिसाइड द फायर, आग के पास बैठ जाते थे एंड इन्जॉय द टाइम वे ड्रिंकिंग ब्रांडी, और ब्रांडी को पी करके वो इन्जॉय करते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि व्हाट डॉक्टर हैरिट सेड दैट ही एंजॉयड अ वेरी हैप्पी टाइम। इन द मॉर्निंग ही टुक 1 or 2 eggs, and after that in midday he take his lunch with wine, and after that in night when he sat beside the fire enjoying to drink wine in such way he spent a very happy life. In such way he spent a very happy life. He further said it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection. कह रहे हैं कि इट वॉज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब होता है ग्रीडीनेस, अट्रैक्ट होना, ग्रीडीनेस अट्रैक्ट। तो कह रहे हैं ये बहुत ही मतलब ग्रीडीनेस होगा, एक लालच होगी, टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, मतलब ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट रखना, दैट इज़ अ टेम्पटेशन, दैट इज़ अ ग्रीडीनेस, दैट इज़ अट्रैक्शन। बट आई न्यू, लेकिन वो कहते हैं मैं जानता हूँ मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग मतलब मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्टर्ब, शी कांट फील हैप्पी विदाउट ट्रिकी, शी कुड नॉट फील हैप्पी विदाउट ट्रिकी, दैट इज़ वाई आफ्टर 15 days the writer Dr. Harriet compelled to phone her and tell her that the little dog had recovered and he was waiting for you. तो इस तरह से वो बताते हैं कि एट लॉस जो है डॉक्टर हैरिट मजबूर हो जाते हैं, वो जो है उनको फ़ोन करके बताते हैं कि जो डॉग है वो बिल्कुल रिकवर हो गया है और वो उनका इंतज़ार कर रहा है, मतलब डॉग इज़ जस्ट वेटिंग फॉर हर, वो उनका क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। विद इन फ्यू मिनट्स व्हाट्स हैपेंड, देखो विद इन फ्यू मिनट about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. मतलब when Dr. Harriet rang her and after a few minutes Dr. Harriet saw that a 30 feet well shining black metal car just stood outside of the hospital. जो उनका हॉस्पिटल था उसके सामने आकर के काले रंग की बिल्कुल चमचमाती हुई कार 30 फुट लॉन्ग कार आके खड़ी होती है। द चॉपर में ड्राइवर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे। ड्राइवर जो है वो फाटक को खोलता है एंड डॉक्टर हैरिट सेड दैट ही कुड इमेजिन द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, सी वॉज लॉस्ट इन थिंकिंग, जैसे वो सोच में कुछ खोई हुई थी, इंटीरियर थिंकिंग वो कर रही थी। हर हैंड वेयर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, अब वो अपने हाथों को अपने सामने ऐसे दूसरे से कस के पकड़ी हुई क्लैप्सिंग की हुई हैं। हर लिप्स ट्रैम्पलिंग, ओठ जो है लिप्स जो है वो सीवरिंग कर रहे हैं। ओ मिस्टर हैरिट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? तो इन दिस वे Mrs. Pumphrey asked to Mr. Harriet, "Oh, Mr. Harriet, tell me the truth. Is really Tricky was better?" जो पूछते हैं ट्रिकर से कि भाई आप मुझे बताओ कि क्या वास्तव में जो ट्रिकी है वो अच्छा महसूस कर रहा है? Yes, he is fine. Yes, he is fine. Dr. Harriet said, "No, undoubtedly he is fine. There is no need for you to get out of the car." उसको कहते हैं कि देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फेस मीन्स ब्रिंग, वो कहते हैं कि डॉक्टर हैरिट सेड दैट ही विल गो एंड ब्रिंग द डॉग, कहते भी मैं अंदर जा रहा हूँ, आपके डॉग को लेके आ रहा हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, तो मतलब ये बताते हैं कि वेंट फ्रॉम द फ्रंट डोर इन टू द गार्डन, ए मॉस ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग मतलब राउंड एंड राउंड, मतलब आप समझ सकते हो कि कुछ एक मॉस ऑफ डॉग, बहुत सारे जो डॉग्स थे वो मूविंग टू एंड फ्रो, मतलब इधर उधर घूम रहे थे गोल गोल करके लान में, आंगन में। एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके बीच में
ear flapping, tail waving, ear flap, moving his tail, was a little golden figure of tricky. तो बीच में जो ट्रिकी है जिसका फिगर जो है गोल्डन फिगर है वो बिल्कुल मूवमेंट कर रहा है, मतलब सारे जो डॉग्स हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं, उनके बीच में जो ट्रिकी है वो भी उनके साथ साथ मूवमेंट कर रहा है. In 2 weeks he had been transferred into a leaf. Leaf means होता है फ्लेक्सिबल. In 2 weeks यानी इस 2 सप्ताह में he had been transferred, he has been changed. It means his lazy body just changed into the flexible bodies. His lazy body just changed into the flexible hard muscles animal, and now the looseness of his body has been gone and his muscles just being hard and strong. यानी आप समझ सकते हो कि इस तरह से जो है एनिमल जो है वो जो है अब उसकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुकी है और उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो चुकी हैं. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, यानी पैक मीन्स द ग्रुप ऑफ डॉग्स, यानी लिविंग विद ग्रुप ऑफ डॉग्स. ही वॉज फीलिंग वेल, स्ट्रेसिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, बिल्कुल अपने शरीर को अच्छी तरह से वो फैला सकता था. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और जब वो फ्लेक्सिबल होकर के बॉडी को लचीला करता था, फ्लेक्सिबल करता था, जो उसका चेस्ट था वो लगभग जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसको वो टच कर देता है. इट मीन्स इन दिस वे डॉक्टर हेडिस जस्ट चेंज द लाइफ ऑफ ट्रिकी. In the beginning, what's the position of Tricky? Tricky was very lazy. He can't able to move. He can't able to run. He just become a greedy animal. Just start to eat and eat. But after when he came into the surgery of Dr. Harris just start to not giving him much food. Just he gave him to drink much water, and finally. Living with the dog, he just started to do a lot of exercise, running, moving, hunting, and so on many activities. That is why his body is completely changed. Now his body just become a flexible body. एक flexible body के रूप में उसकी body हो चुकी है. Now see here, I carried him back along the passage. Okay, I carried him back along the passage to the front of the house. वो कहते हैं कि मतलब वो आगे के रास्ते से, घर के आगे के रास्ते से पीछे की तरफ जाते हैं. आई कैरिड हिम मतलब वो उसको लेकर के आते हैं. कैरिड हिम मतलब उसको पकड़ के लाते हैं. फ्रॉम वेयर बैक मतलब पीछे से. along the passage to the front of the house मतलब फ्रंट बाहर दरवाजे पे आते हैं. वेयर द कार स्टोर, आप कह सकते हो कि मिस्टर डॉक्टर हैरिस जस्ट went back side of the house from where Tricky was playing with the dogs. From there he caught the Tricky, he carried the Tricky and come through the front door of the house. The chauffeur was still holding the car door. Chauffeur means जो ड्राइवर है, chauffeur is जो ड्राइवर है, was still holding the car door. He still holding the car door open. मतलब जो ड्राइवर है वो अभी भी जो दरवाज़ा है कार का, जो हैंडल है, उसको वो खोल करके खड़ा था. एंड वेन ट्रिकी सा हिज, अब उसके बाद देखो क्या होता है. वेन ट्रिकी सा हिज, जब ट्रिकी देखती हैं, किसको देखती हैं? अब आप देखो, आप यहाँ लास्ट, दैट इज योर लास्ट पैसेज. हिज मिस्ट्रेस, जब वो अपने मिस्ट्रेस को देखता है. हु? ट्रिकी. वेन ट्रिकी saw his mistress, he took off from my arm. He jumped off from my arm. वो कहते हैं कि वो in a tremendous leap, in a tremendous leap मतलब बिल्कुल उछलते हुए, अद्भुत तरीके से उछलती हुई, मतलब जब वो अपने मिस्ट्रेस को देखता है. he took off from my arms, वो मेरे आर्म से, जैसा डॉक्टर हैरिट कर रहे हैं कि उनकी भुजाओं में से
बहुत ही ट्रिमेंडस तरीके, बहुत ही विचित्र तरीके से वो जंप लगा जाता है एंड सेल्ड, और हवा में तैरते हुए इनटू मिसेस पंपरे लैंड, और जा करके मिसेस पंपरे की गोद में गिर जाता है। व्हाट यू अंडरस्टैंड? व्हेन ट्रिकी सा मिसेस पंपरे जस्ट jumped from the lap of the Mr. Harris and just sailed into the air from the lap of Mrs. Pumphrey. She gave a startled oh, surprising. Startled means surprising. She gave a startled oh. जो मिसेस पंपरे हैं बिल्कुल उसको देख के सरप्राइज होते हैं, वो ओ बोलती हैं, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और उसके बाद वो स्वयं को उस डॉग से बचाती हैं। आप बता सकते क्यों बचाती हैं? बिकॉज सडनली डॉग जम्प्ड एंड सिट इन हिज लैप, इन हर लैप, एंड स्टार्टेड टू lick her face and also started to jump over her bodies. That is why a difficult situation came before the Mrs. Pumphrey, and that is why he started to defend herself as he swarmed over her. जिसे swarm means होता है मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी होती है वो नीचे से ऊपर चढ़ती है, वैसे जो डॉग है बिल्कुल मधुमक्खी की तरह से उनको लीकिंग करते हुए ऊपर चढ़ता है एंड बार्किंग, और भौंकता है, उनके चेहरे को लीकिंग करता है और भौंकता है। तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट होती है उनके सामने, शी कांट एबल टू डू, मतलब कुछ कर नहीं पाती है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट के दौरान, यानी जो एक्साइटमेंट था, जो सीन वहाँ चल रहे थे, आई हेल्प द ड्राइवर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, वो कह रहे हैं कि जो ड्राइवर था उसको मैंने सहायता किया क्या लाने के लिए, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, उस बेड्स को बाहर लाने के लिए, जो टॉयज़ थे उसको बाहर लाने के लिए, जो कुशन थे, जो कारपेट थे जिस पे वो सोता था उसको कोट्स उसकी जो थी, बाउल थी, जितनी सारे जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें थी, आइदर बेड्स, टॉयज़, कुशन, कोट्स एंड बाउल, everything has been provided by him. Everything has been provided by him, and with the help of driver, all the things came out from the houses, none of which had been used. अब देखो ये तो सारी चीज़ें उस डॉग के साथ उनके पास गई थी, लेकिन उन चीज़ों का वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किए थे। इट मीन्स जो राइटर है ही कांट यूज एनीथिंग, क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जो ट्रिकी है बिल्कुल नेचुरल लाइफ जिए, जो नेचुरल लाइफ जो होती है डॉग का, जो नेचुरल हैबिटेट होता है, जो नेचुरल हैबिट होते हैं, उस नेचुरल हैबिट के द्वारा वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करे। इसीलिए जो पोएट्स है वो, इसीलिए जो राइटर हैं उसको कोई भी लग्जरियस आइटम प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है, खाने के लिए, ना उसको पहनने के लिए, ना उसको सोने के लिए, ठीक है। जस्ट लिव विद द अदर डॉग एज अदर डॉग्स एज लिव एज ही आल्सो, और जस्ट herself like dogs. As the car moved away, जैसे ही कार वहाँ से घूमती है, आगे बढ़ती है, मिसेस पंपरे leaned out of the window. मिसेस जो पंपरे हैं बिल्कुल वो खिड़की से बाहर झुक करके देखती हैं। tears shone in her eyes, उनके आँखों में आंसू थे, अर्थात वो कैसे आंसू थे? The tear of happiness, वो आंसू जो थे वो खुशी के आंसू थे। Those are the tears of happiness, तो खुशी के आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, हर लिप्स और शिवरिंग, उनके जो लिप्स थे वो काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरिट, शी क्राइड, वो जोर से चिल्लाती हैं, कहती ओ मिस्टर हैरिट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कहते कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ। दिस इज़ द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, वास्तव में ये जो है वो दिस इज़ ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है। वो कहते हैं रियली दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। और इसी शब्दों के साथ जो लेसन होता है वो फिनिश होता है। अब आप देखो बेटा, कुछ यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, इसको आप देखो। सॉसेस फाइनली मिंस्ड मीट स्टफ्ड इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल केसेस एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंथ बाय ट्विस्टिंग अ ट्राइंग। रिमूव द वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम mucous membranes, especially of the nose or eyes. Listless, lacking energy or enthusiasm. Lumbago, muscular pain in the lower part of the back. Resume prescribed course by exercise and diet. Distraught, extremely worried. Surgery, a place where a doctor, a dentist, or a veterinary surgeon treat
पेशेंट, उसको आप हॉस्पिटल कह सकते हो। स्क्रीमिंग, रफ और कन्फ्यूज स्ट्रगल। कंडलेंस, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, लिथ, फ्लेक्सिबल। These are the meaning. Okay, I hope it is clear to all. Thanks to watch my video.